Welcome students. This is our new topic. Next topic, that is Born-Oppenheimer approximation. See this topic, Born-Oppenheimer approximation. This topic maybe you might be feeling difficulty in understanding क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पार्ट फिजिक्स का इन्वॉल्व है. इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी यू माइट बी फील इन अंडरस्टैंडिंग. देन ऑल्सो जो भी मैंने कुछ दिया है इसके अंदर, that matter you write, then also it is sufficient. Now what is Born-Oppenheimer approximation? See this topic, it gives the information about the molecule. It gives us the whole energy associated with the molecule, the energy associated with the nucleus, and the energy associated with the electrons in the molecule. Now one by one we'll read the point and I will tell you the meaning of that point. First, what the first point is saying, a molecule is formed by binding two or more atoms in such a way that the total energy is lower than the sum of the energy of the constituent. See what the first point is saying, that a whole molecule, it is formed by two atoms, by combining of two atoms. Suppose we have this two atom. This two atom combines to form a one big molecule. Now this point is saying that the energy of the molecule, the energy of the whole molecule is less than the energy of the two atom. Why it is so? Because when such molecule is formed by the combination of two atoms, some of the energy is destroyed while forming the molecule. That's why the molecule is having the less energy. This total energy is lower than the sum of the energy of the constituent. Means total energy of the molecule is lower than the sum of the energy of the constituting atom. Okay. This point is clear to you. Now we will move to next point. Electron of the inner shell of the atom forming molecule remain localized about each nucleus. Now this point is saying that the electron present near the nucleus, we have, see, in molecule, suppose we have this molecule. In this molecule, this is the nucleus. Nucleus is present at the center. Okay, nucleus is present at the center, and we have so many orbitals are there like this. Okay, so many orbitals are there, and in these so many orbitals there are electrons. The electrons are revolving around this nucleus, the center nucleus. The electrons are revolving in its orbital around the nucleus. So what the point is saying, that the electron present in the inner shell, the electron present, this is the nucleus, and the electron present in the inner shell means the shell near to nucleus. In that, the inner shell, the electrons are localized to nucleus. It means that the point says the electron present in the inner orbital, they are localized, means tightly bind to the nucleus. Okay, tightly bind, the electrons in the inner shell is tightly bind to the nucleus. Yes, because the force given by the nucleus is more to the electron present in the inner shell. Now next point is, bonds are normally of ionic and covalent nature. Yes, जो बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, जो बॉन्ड फॉर्म होगा दो एटम के बीच में, ये दो एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इट कैन बी कोवलेंट और इट कैन बी आयनिक. अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, दिस थिंग ये तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक थिंग. व्हाट दिस क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड, the bond form between the atoms when the molecule is formed. जब molecule form हो रहा है by the two atoms, जो bond form होगा, it can be ionic or can be covalent in nature. Okay, because molecule जब form होता है दो atom की वजह से ही form होता है, दो atom के bind होने से ही molecule form होता है, और दोनों atom के बीच में ionic bond या covalent bond भी हो सकता है, कोई भी bond हो सकता है. Now next,
द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज कंपेरेबल इंटेंसिटी। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, जो दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा एक में को। Now next point is, since the nuclei is about 2000 times heavier than the electron, अब now what it is saying that अब जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का और जो न्यूक्लियस का मास है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्या सी ये जो न्यूक्लियस है ये इसका मास has compared to the mass of electron, then mass of nucleus is very large, it is 1000 times more than the mass of the electron. So इसीलिए रोटेट तो ये भी करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इसके न्यूक्लियस के गोल गोल और न्यूक्लियस भी रोटेट करता है, लेकिन क्या होता है न्यूक्लियस का मास बहुत 1000 टाइम्स ज़्यादा होने की वजह से उसका मास हम लोग स्टेबल कंपेयर करते हैं, स्टेबल एज्यूम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका मास स्टेबल एज्यूम करता है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए ये पॉइंट वही बोल रहा है, सिंस द न्यूक्लियस आर अबाउट 2000 टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्लोअर दैन द इलेक्ट्रॉन। जो मोशन है न्यूक्लियस का उसको मच स्लोअर, बहुत स्लोअर कंपेयर करता है इलेक्ट्रॉन। अब सामने ठीक है स्लोअर, या फिर हम लोग उसको कांस्टेंट भी कंपेयर कर सकते, कांस्टेंट भी सोच सकते हैं, न्यूक्लियस का मास या न्यूक्लियस का रोटेशन कांस्टेंट भी सोच सकते हैं। हेंस इट कैन बी एज्यूम दैट न्यूक्लिया ऑक्यूपाई नियरली फिक्स्ड पोजीशन इन द एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इसीलिए जो बॉर्न ओपेनहेमर ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें क्या किया है उन्होंने, जो न्यूक्लियस का मास है, जो न्यूक्लियस का मास उसको एक क्या एज्यूम किया है, एज्यूम दैट द न्यूक्लिया ऑक्यूपाई नियरली फिक्स्ड पोजीशन इन द एटम। उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लिया की पोजीशन फिक्स होती है, मतलब वो रोटेट नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रोटेट करता है। क्या एज्यूम किया कि न्यूक्लिया एक फिक्स पोजीशन पर ही रहता है, वो रोटेट नहीं होता, ये उन्होंने एज्यूम कर लिया। क्यों एज्यूम कर लिया, क्योंकि न्यूक्लियस का मास 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है, 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है हैज़ कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। See, in the Born-Oppenheimer approximation, they have taken the hydrogen molecule. They have taken hydrogen molecule. Hydrogen molecule is formed by the combination of two hydrogen atom. This is one hydrogen atom. This is the other hydrogen atom. This is one electron of this atom, one electron of this atom. Now, in this, there is the ये न्यूक्लियस है दोनों का, न्यूक्लियस इन बिटवीन न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स है ना। कोलम्बिक फोर्स क्या होता है, कोलम्बिक फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए स्टेबल है ऐसे कंपेयर करते हैं, तो ये इसके तरफ कोलम्बिक फोर्स ये करेगा, कोलम्बिक फोर्स अप्लाई करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ कोलम्बिक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल है। ये दोनों एक भले ही रोटेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए रोटेशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का इसके लिए रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक में के लिए स्टेबल है, इसलिए ये दोनों एक में के ऊपर कोलम्बिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक में के ऊपर कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स इसलिए क्योंकि दोनों भी सेम चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गए कोलम्बिक फोर्सेस। अभी आगे देखते हैं। ठीक है अभी हैमिल्टोनियन, अभी ये जो मॉलिक्यूल बन गया H2 जो मॉलिक्यूल बन गया उसका हम लोग हैमिल्टोनियन लिखेंगे। हैमिल्टोनियन एक मॉलिक्यूल की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ये फिजिक्स वालों को
अच्छी तरह से पता है हैमिल्टोनियन क्या होता है, स्क्वाड्रस इक्वेशन क्या होता है, तो इसका हम लोग ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का हम लोग हैमिल्टोनियन लिख लेंगे। मतलब टोटल एनर्जी लिख लेंगे उसकी। हैमिल्टोनियन को H से रिप्रेजेंट किया है इक्वल टू Tn। Tn मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी हो गई वो। T काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। VEE मतलब पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब कोलम्बिक एनर्जी, ये जो है ये कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी इन दोनों की। EN इन दोनों की कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और VNN न्यूक्लियस इन दोनों का कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हो गया, मतलब ये पूरी मॉलिक्यूल की हम लोग ने एनर्जी लिख ली है, पूरी एनर्जी इस मॉलिक्यूल की हैमिल्टोनियन के फॉर्म में। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या हो गया, Tn काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन, ये कोलम्बिक एनर्जी है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं इसको। ठीक है कोलम्बिक एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही ना, एक मेक को ये लोग स्टेबल एज्यूम कर रहे हैं, ये इसको स्टेबल एज्यूम कर रहे हैं, इसको स्टेबल एज्यूम कर रहा है, इसलिए एक मेक के ऊपर कोलम्बिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल फोर्स भी वही होता है, दोनों स्टेबल होते हैं तब एक मॉलिक्यूल स्टेबल है तो ही उस पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आती है, तो वही इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं या फिर कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो देख लेना। तो हमने एट लास्ट क्या किया, ये जो H2 मॉलिक्यूल है उसके हमने हैमिल्टोनियन लिख लिया। अब इसी H2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग स्क्वाड्रस इक्वेशन लिखेंगे। अब ये स्क्वाड्रस इक्वेशन हो गया। स्क्वाड्रस इक्वेशन हमेशा इस टाइप से ही लिखते हैं, ये हैमिल्टोनियन और ये हो गया आइगन फंक्शन, हैमिल्टोनियन आइगन फंक्शन और E एनर्जी और आइगन फंक्शन, इस फॉर्म में ही हमेशा स्क्वाड्रस इक्वेशन लिखते हैं। तो ये इस H2 मॉलिक्यूल का ये हैमिल्टोनियन हो गया, ये स्क्वाड्रस इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये R1 जो R है, ये R छोटा r है वो ऑर्डिनेट्स है, इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्डिनेट्स है, और जो कैपिटल R है वो डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये छोटा r, ये r बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन के ऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अभी क्या लिख लिया, इस H2 मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन लिख लिया, इस H2 मॉलिक्यूल का स्क्वाड्रस इक्वेशन लिख लिया, मॉलिक्यूल का लिखा हमने। ठीक है, ये दोनों भी मॉलिक्यूल का है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने हैमिल्टोनियन लिखा इसमें से ये वाला और ये वाला इन दोनों को स्टेबल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो मॉलिक्यूल लिया है, अब Tn मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होगी इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो जो न्यूक्लियस है उसको तो हम लोग स्टेबल ही एज्यूम कर रहे हैं, वो तो जगह पर ही रहने वाला है ना, वो न्यूक्लियस तो स्टेबल एक ही जगह पर रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो ही होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ज़ीरो होगी। और ये भी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की जो पोटेंशियल है, जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा VNN, ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं, बाकी चीज़ वैसे की वैसे ही रखते हैं। तो ये देखो हैमिल्टोनियन बाकी चीज़ वैसे की वैसे रखे, और देखो इसको इन दोनों को हमने हटा दिया, बाकी चीज़ वैसे की वैसे रहती, इन दोनों को कांस्टेंट पकड़ लिया, क्योंकि न्यूक्लियस का मास हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि न्यूक्लियस का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको फिक्स कर देंगे, उसको कांस्टेंट पकड़ लेंगे। तो इन दोनों को हमने कांस्टेंट पकड़ लिया। अब H के पास ये 3 वैल्यू बचे हैं, ये 3 वैल्यू ही हमने लिख दिए, और यहाँ पर भी E लगा दिया हमने, यहाँ पर E लगा दिया। क्यों E लगा दिया, ये सारे जो वैल्यू बच गए हैं उन सब में ई लगाया है, मतलब ये बन गया है हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रॉन का बन गया, इसलिए यहाँ पे भी लगा दिया ई। अब हमारा ये जो हैमिल्टोनियन बन गया, ये हैमिल्टोनियन हमारा हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन का। जो पहले हमारे पास हैमिल्टोनियन था वो हमारा मॉलिक्यूल का था, अब ये हमारा हैमिल्टोनियन है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन का। अब ये जब हैमिल्टोनियन लिख दे इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग स्क्वाड्रस इक्वेशन भी इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे। स्क्वाड्रस इक्वेशन सेम जो पहले स्क्वाड्रस इक्वेशन लिखा था वही लिख दिया, यहीं पे लिखेंगे, वही लिख देंगे।